Today we are discussing about the question number 15 for the standard of intermediate first year. Those who are choice as a second language Hindi. In previous classes we are already discussed about the same topics of the grammar. The grammar item means grammar. You are having that in for first year standard 11 question number 11 to 16 mean totally 6 type of questions will ask. Here in this 6 questions the total marks is total marks for grammar is 40. For the 40 marks denomination, the total questions are 11 to 16. In previous classes we are already discussed up to 15 questions, means 11, 12, 13, 14 and 15th also. But in that 15th question particularly you are having that different type of bits asking here. Mean the question asking change the as per asking question as per asking, that hint note will given there. So in that question the different type of what type of bits are asking means the Vakya Shuddhata means correct the sentence, next there's a suffix and prefix prefixes and the genders, about the gender and the tense also. Here the numbers means singular to plural, and that find lastly here 1 or 2 questions asking about the tenses also. So in previous classes already we are discussing how to change correct the sentences proper in order. The next the suffixes and prefixes, you are given one of the sentence and you underline one of the word. Here which word is underlined, what is the prefix or suffix in that word, you should identify and separate the separately. Or sometimes you are asking the question, here you should change as per the prefix proper order. Change the sentence as per the prefix or suffix proper order. The next the genders and numbers. Here gender that given one or 2 questions in that question number 15. Here asking that underlined one of the sentence one of the word, and as per that underlined word you should change that gender. Mean if you asking that female, so you change in a male gender. Okay, like the same 1 or 2 questions asking about here about that gender, and the same way in the numbers and the tenses too. Here 1 or 2 sentence bits asking in the question number 15 for the change the numbers and that change the sentences in present to past, past to future, like that. Okay. Today we are discussing about the same tenses. About the tenses here, first of all that given the definition of what is the tenses. Means how many kinds of tenses in Hindi and what are they, mean how to change the tenses, mean what rules and conditions should follow that changing one tense to another tense. मेरे प्रिय छात्रगण शुभोदय। आज के इस अंतर में इंटरमीडिएट प्रथम वर्ष से संबंधित मैंने स्तर के छात्रों के लिए जो हिंदी दीदी भाषा के रूप में स्वीकार किया है
उन स्तर के बालकों के लिए व्याकरण से संबंधित मीन्स ग्रामर से रिलेटेड होने वाला विषय का विश्लेषण किया जा रहा है। जब व्याकरण जो होता है आपको प्रश्न पत्र के अंतर्गत खंड खा के रूप में पूछा जाएगा। खंड ख के रूप में कितने अंक के लिए? 40 अंक के लिए होगा। कितने प्रश्न पूछेंगे? 11 से 16 तक प्रश्न होंगे। कुल योग जो प्रश्न की संख्या 6 मात्र होगी। इन 6 मात्रों के लिए क्या किया जाता है? 40 अंक का इसका निर्धारण है। इन पिछले अंतरों में हमने क्या देखा है? प्रश्न नंबर 11 से 15 तक प्रश्नों का विश्लेषण किया गया। मैंने 100 उदाहरण के रूप में उन परिभाषाओं का मैंने इस प्रश्न नंबर 15 में प्रश्न कैसे पूछा जाएगा जिसमें देखा गया तो सूचना के अनुसार बदलिए। मैंने यहाँ पर यानी कुछ 8 प्रश्न पूछेंगे। 8 प्रश्नों में 6 मात्र करना है। यानी 6 के लिए एक एक अंक, 6 अंक के लिए ये प्रश्न का मैंने मार्क्स जो होते हैं 6 for 6 मार्क्स, राइट। तो इस प्रश्न के अंतर्गत पूछे जाने वाले जो विषय होंगे ये वाक्य शुद्धता एक है, तो प्रत्यय के संबंधी, उपसर्ग के संबंधी, लिंग, वचन, काल के संबंधी कुछ ऐसे विषय प्रश्न के रूप में पूछेंगे। मैंने एक वाक्य का रूप दिया जाएगा जिसका वाक्य शुद्ध कीजिए या लिंग बदलिए, वचन बदलिए। मैंने एक वाक्य के अंतर्गत किसी एक शब्द का शब्द को रेखा अंकित किया जाएगा, मीन अंडरलाइन किया जाएगा। उसका अंतर्गत उसको उसी के आधार पर क्या करनी है? लिंग बदलकर वाक्य को पुनः लिखना पड़ेगा। और वचन के संबंधी पूछा गया तो वचन बदलकर वाक्य लिखना पड़ेगा। या उस अंदर मैंने रेखांकित किया गया शब्द का वचन के संबंधी और उपसर्ग के संबंधी, प्रत्यय के संबंधी, यानी इस प्रकार आपको यानी क्या होता है अभ्यास पिछले अंतरों में देखा गया, विश्लेषण यानी कि चर्चा की गई। आज के इस अंतर में जो इस प्रश्न से संबंधित अंतिम वाला विषय काल है, तो काल किसे कहते हैं और काल के अंतर कितने भेद होते हैं और इस भेद के क्या उदाहरण होते हैं, इसका कैसे पहचान की जाती है, इस प्रकार इसका विश्लेषण रूप देखा जाएगा। हाँ, तो पहले इसकी परिभाषा मैंने डेफिनेशन ऑफ टेंस, राइट। तो यहाँ पर किसकी परिभाषा? काल की परिभाषा का रूप देखा गया, नहीं जिसमें काल क्रिया का वह रूप है। काल क्या देखा गया? क्रिया का वह रूप है जिससे उसके होने अथवा करने के समय तथा उसकी पूर्णता या अपूर्णता का बोध होता है। कार्य के करने के समय या जिसके होने का संभावना, और क्रिया वह रूप है जिसके होने या करने के संबंधी जो बोध करते हैं, ऐसे वाले शब्द को, क्रिया को हम काल का, इस क्रिया के आधार पर हम काल का निर्धारण करते हैं। काल का निर्धारण किस रूप में होता है? दिए गए वाक्य के अंतर्गत जो क्रिया होता है वो क्रिया के होने का या तो उस करने के संबंधी जो बोध होता है, तो उसी के आधार पर क्रिया का यानी काल का निर्धारण होता है। जिसमें पूर्णता अपूर्णता का बोध होता है, तो उस वाले को क्या कहा गया? काल के रूप में निर्धारण करते हैं, जैसे टेंस में। तो उसके बाद जैसे उदाहरण के रूप में वह पढ़ता है, वह माने यहाँ पे जो होता है किसी नाम भी हो सकता है, राम पढ़ता है ना, तो लड़का पढ़ता है, कुछ भी लिया जा सकता है। यहाँ पर कर्ता का काम का करने वाला या उसका समापन ऐसे संबंध नहीं, बल्कि क्रिया जो होता है
पढ़ता माने प्रेजेंट टेंस में है, वर्तमान के संबंधी बताता है, माने कार्य किए जाने के संबंधी बताया जाता है, किया गया का संबंध नहीं है, और किए होने वाले के संबंध नहीं बताया गया, और वर्तमान के संबंध हो रहा है, तो ऐसे संबंधी बताने वाले क्रिया को हम ऐसे वाले को क्या बताया गया, काल के निर्धारण बताया गया। जैसे उदाहरण के लिए वह पढ़ता है, एक काल है माने वर्तमान के संबंध है। राधा नाचती है नाचती है माने ये भी प्रेजेंट टेंस में बताए और जैसे राधा के जगह हम क्या बताते हैं लड़कियां बताएंगे, लड़कियां नाचती, जैसे लड़कियां नाचती हैं, लड़कियां नाचती बिंदी रूप में बहुवचन होने से नाचती हैं, नाचती पास है प्रेजेंट टेंस में है ये तो प्लूरल में है, ये वह पढ़ता है वर्तमान काल के अंदर बताया गया। लड़की नाचती है अरे नाचती लड़कियां नाचती हैं बहुवचन का रूप है, और वे वह देखती वे देख चुके थे, मैंने वर्क ओवर यानी कार्य हो चुका है, माने काम हो जाने का संबंध क्रिया का संकेत होता है। इसको ऐसा क्रिया के रूप में भिन्न भिन्न रूप में, वर्तमान के रूप में, भूत के रूप में, भविष्य रूप में, इस प्रकार होने मात्र से काल के भेद के रूप में जैसे देखा गया। काल के कितने भेद बताए गए, 3 भेद होते हैं। कितने भेद हैं, 3 भेद होते हैं। जैसे भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। जैसे इसको क्या कहा जाता है, भूतकाल के माने पास्ट टेंस, नेक्स्ट इस वाले को प्रेजेंटली प्रेजेंट टेंस, और ये वाले भविष्य के अंतर्गत जो बताया गया फ्यूचर टेंस है। Today we are discussing about one of the item of the grammar, mean that particularly the question number 15, which asking in question number 15 as a bit, one of the bit. So that's the tenses. What is the definition of the tense? Which verb, means the tense depends upon that verb form, mean verb form which indicate, which verb in a sentence indicate that past tense, present and future, so it's known as the tense. We can be decide as that type of tense. Means the tenses are totally 3 type of tenses are there. What are they? Means that the past tense, present tense and future tense. Past tense means which work is already done by the person is known as a past tense. That present means which work is continue now present you are doing, that means as a present tense. Future to be done means in future to be work will be complete after some time, that's known as the future. So these all that 3 type of tenses are there. Simply here that we should take the first one of that bhutkal means present tense. What is the definition of that? How to identify the present tense is our past tense? Mean जिस क्रिया के कार्य की समाप्ति का बोध हो उसे भूतकाल की क्रिया कहते हैं। यार क्या बताया गया, जिस कार्य की समाप्ति का रूप बताया गया, कार्य का समाप्ति में कार्य हो चुका है, अरे हो जाने की संभावना है, हो जाने की संभावना, हाँ तो हो चुका है, तो वो काल है नहीं, जिस काल का हो जाने का संभावना है, मतलब उसको हो चुका है तो उसको भूतकाल का रूप बताया गया। जैसे उदाहरण के रूप में वह सो गया था, मेन पास्ट टेंस दर वर्क, सोने का वर्क जो हुआ है, जो वह का माने यहाँ पर लड़का, सोमो, रोमो कुछ भी ले सकते हैं, नहीं लड़का मैंने सोमो
सोमू सोया था या सो गया था, है ना, वर्क ओवर। नहीं, सुनीता बाजार गई थी, सुनीता से बाजार जाने का काम हो गया है, हो चुका है, इसलिए इसको फ्यूचर टेंस मैंने भूतकाल में पास्ट टेंस में लेते हैं। नहीं, उसने गाना गाया था, उसने का माने यहाँ पर लड़के ने, ऐसे कुछ ले सकते हैं, लड़के ने गाना गाया था, माने ये वर्क जो लड़के से गाने का जो कार्य है वो हो चुका है। इस प्रकार से यहाँ पर भूतकाल का विश्लेषण यहाँ पर दिया गया है। इस प्रकार से भिन्न भिन्न कार्य के संबंधी मैंने जो कार्य बीता गया, मैंने हो चुका है, तो ऐसे वाले को क्या कहते हैं, भूतकाल के रूप में होता है। और इसके अंतर्गत भी भिन्न प्रकार के, जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया गया कि गोपाल से कहानी पढ़ी गई। द वर्क इज ओवर मीन्स द गोपाल, द स्टोरी वॉज रीड बाय द गोपाल, माने जो कहानी जो होती है वो कहानी किससे, गोपाल से पढ़ चुकी, माने पढ़ी गई। क्या हो गया यहाँ पे, जो काम का होना है वो माने बीता हुआ है कार्य, तो उसको हम माने भूतकाल के रूप में बताया जाता है। मैंने वो सो गया था, वो सोया था, इस प्रकार से सोने का काम जो होता है, माने सो जाने का काम जो होता है, क्रिया वो सोम से हो चुका है, इसलिए इसको भूतकाल का निर्धारण करते हैं। इस प्रकार से एक एक काल के बारे में अभ्यास का रूप देखते समय इसका विश्लेषण होगा। अब ये जो था पहला वाला काल जो भूतकाल है, और इसके बाद जो होता है काल, दूसरा काल जो होता है वो वर्तमान काल। ये दूसरा जो काल है ये तो प्रेजेंट भूतकाल हो गया। अब ये प्रेजेंट टेंस जैसे वर्तमान काल के अंदर जब देखा गया, वर्तमान काल जो होता है, वर्तमान काल, ये वर्तमान काल मीन्स प्रेजेंट टेंस। ये प्रेजेंट टेंस में क्या देखा जाता है, जो काम का होने का दिखाया जाता है, यानी जिस क्रिया से काम का होना बोध हो, उसे वर्तमान काल करते हैं, वर्तमान काल कहा जाता है। हाँ, तो ये वाला जो होता है, जैसे उदाहरण के रूप में क्या बताया गया, जिस क्रिया से काम का होना माने किया जाना बोध हो, किया जाना का बोध हो, तो उसे वर्तमान काल कहते हैं। मैंने जैसे प्रेजेंट है, विच वर्क, अरे तो जो प्रेजेंट, उदाहरण के रूप में जैसे लड़की खाना खाती है, ये लड़की जो होती है एक वचन है, स्त्रीलिंग होने से खाती है, इसी वाले को वो लड़का इस रूप में, लड़का यानी खाना खाता है। मैंने क्योंकि लड़का रहने से ये पुल्लिंग एकवचन से क्रिया के रूप में खाता है ऐसा बताया गया, ये लड़की स्त्रीलिंग एकवचन से खाती है। इसी के संबंधी वर्ग लिंग के अनुसार ऐसे परिवर्तन हुआ है, और वचन के अनुसार जो देखा गया, वचन में क्या देखा जाता है, वचन के रूप में कि लड़की ये एक वचन में है, लड़की का बहुवचन जो होता है लड़कियां खाना
खाती हैं का रूप हुआ है, बिंदी का रूप हुआ है। इसी वाले पुल्लिंग के रूप में ये स्त्रीलिंग बहुवचन है। और यही पुल्लिंग के रूप में लड़के खाना खाते हैं, माने वर्क अभी प्रेजेंट काम हो रहा है, खाने का काम, किससे? लड़कों से खाने का काम हो रहा है, माने इसको क्या कहते हैं? लड़के खाना खाते हैं, बिंदी के रूप में देखा गया। यहाँ पर क्या बताया जाता है? लड़की खाना खाती है, एक वचन के रूप में प्रेजेंट टेंस में है, तो इस प्रकार से बताया गया। और यहाँ पर उसी वर्ग को अगर पुल्लिंग एक वचन में है तो लड़का खाना खाता है। इसी प्रकार लड़कियां, इसका बहुवचन रूप में, ये एक वचन का रूप है, एक वचन का रूप है। तो यहाँ पर लड़कियां खाना खाती हैं, लड़का खाना खाता है, लड़के खाना खाते हैं। इस प्रकार वचन के संबंध में, और ये काल का परिवर्तन जो होता है, लिंग वचन के काल के संबंधी एक शुद्ध रूप ये होता है। जैसे लिंग वचन काल, ये तीन का अभिनाभाव संबंध होता है। तीन एक दूसरे के प्रति आकर्षित होने वाले हैं, एक दूसरे के वाक्य को बदलते समय क्या करना पड़ता है? लिंग के अनुसार, वचन के अनुसार, काल के अनुसार। यानी जैसे देखिए, ये वाक्य शुद्धता के अंतर्गत भी ध्यान देने वाला है, क्योंकि इस प्रश्न के प्रश्न नंबर 15 के अटेम्प्ट करते समय क्या करना पड़ता है? वाक्य शुद्धता के और जैसे लिंग वचन काल, ये चार जो बदलते समय एक ही नियम का ध्यान होनी चाहिए। जैसे लिंग वचन काल, जैसे वाक्य शुद्ध करना है तो जैसे एक वाक्य दिया गया, लड़की, हाँ यहाँ पे देखिए, लड़की खाना खाती है, इसको लिंग बदलते समय क्या करेंगे? लड़की खाना खाती है तो लिंग बदलिए, तो ये स्त्रीलिंग है तो पुल्लिंग बदलना है, जिसमें क्या होता है कि लड़का खाना खाता है ना? ये वर्तमान काल है, इसी का लिंग बदलिए का मतलब दिया गया रेखांकित शब्द एक वचन में स्त्रीलिंग में है तो पुल्लिंग का एक वचन बदलना है। पसंद है? जैसे यहाँ पे वाक्य दिया गया, लिंग बदलिए बोल के रेखांकित शब्द किया गया, ये एक वाक्य है। इस वाक्य के अंतर्गत एक शब्द है, ये लड़की है, इस लड़की का रेखांकित करके लिंग बदलिए बोले, तो जिसके संबंध में क्या करना चाहिए? लड़की एक वचन रहने से उन्हें उसको स्त्रीलिंग होने से स्त्री बहुवचन, एक वचन से बहुवचन या स्त्रीलिंग से पुल्लिंग में बदलते समय वाक्य जिस वचन में है, एक वचन में है, तो पुल्लिंग का भी एक वचन में ही परिवर्तन करने चाहिए। और यहाँ पर वर्तमान काल में है तो वचन या वाक्य परिवर्तन में भी लिंग बदल समय वर्तमान का ही काल में बदलना है। जैसे लड़की खाना खाती है, इसका सही उत्तर जो होता है लड़की की जगह लड़का, खाना खाती की जगह खाता, क्योंकि लड़की स्त्रीलिंग रहने से इसको इसके अनुसार ये परिवर्तन हुआ है। कर्ता के अनुसार क्रिया का परिवर्तन होता है, कर्ता पुल्लिंग है, एक वचन है तो ये भी पुल्लिंग एक वचन होता है, ये स्त्रीलिंग है तो ये भी स्त्रीलिंग में होता है। लड़की खाना खाती कौन से काल में है? ये वर्तमान में है, तो इसका लिंग बदलते समय हम इसी संबंधी, एक स्त्रीलिंग है तो पुल्लिंग का बदलते समय ये एक वचन में है तो हम भी एक वचन में लेंगे। और खाना खाती, यहाँ पर खाता है वर्तमान में है तो यहाँ पे भी वर्तमान में लिखना होगा। ये एक वचन में है तो ये भी एक वचन में होगा, लेकिन स्त्रीलिंग से पुल्लिंग का परिवर्तन यहाँ पर कर्ता के अनुसार क्रिया का बदला है। कर्ता एक वचन स्त्रीलिंग रहने से खाती बोल के बोले, यहाँ पे लड़का पुल्लिंग एक वचन का होने मात्र से खाता है का रूप होता है। और इस प्रकार से वचन के बदलते समय भी लड़कियां खाना खाती हैं, लड़कियां के जगह लड़के, है ना? बहुवचन में तो करते समय क्या करना है? बहुवचन करते समय इसका बहुवचन जो होता है ये वाला रूप है, इसका बहुवचन रूप होता है ये, माने खाना खाता है, लड़का खाना खाता है, लड़के खाना खाते हैं, है ना? लड़की खाना खाती हैं, लड़कियां खाना खाती, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।
हैं का समापन ये हुआ है। तो इसके संबंध में क्या बताया गया, तो यहाँ खाता है, खाते, खाता, यहाँ पे खाना खाता है, खाना खाते, खाता खाते का बहुवचन हुआ है, बहुवचन में परिवर्तन हुआ है पुल्लिंग में, है ना। लेकिन स्त्रीलिंग में खाती, यहाँ पर भी खाती, इसमें कोई चेंज परिवर्तन नहीं हुआ है। में स्त्रीलिंग के एक वचन से बहुवचन करते समय कोई परिवर्तन नहीं होगा। समापन के अंतर्गत तो एक वचन में है का रूप हुआ है, यहाँ पर बहुवचन में है का रूप हुआ है। इस प्रकार से माने काल के बदलते समय क्या करने चाहिए, लिंग वचन के अनुसार। जैसे यहाँ पर इसी वाले वाक्य को है भूतकाल वर्तमान काल के अंतर्गत ऐसा ही प्रश्न होगा। अब वर्तमान काल का पहचान कैसी की गई, वर्तमान किसे कहते हैं, जिस क्रिया से वाक्य के, यहाँ पर देखिए वाक्य के जिस क्रिया से काम का होना या किया जाना का बोध हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में लड़की खाना खाती है, या सेकेंड वन क्या हो गया, लड़का खाना खाता है। और इसी के संबंध में लड़कियां खाना खाती हैं, लड़के खाना खाते हैं। इस प्रकार से 4 उदाहरण इसमें दिए गए हैं। अब उसके बाद यानी भूतकाल के संबंध में देखा गया, थर्ड काल जो होता है वो भूतकाल वर्तमान काल हो गया, भविष्यत काल, भविष्य काल माने फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में देखा, फ्यूचर टेंस में क्या होगा, वाक्य के परिभाषा डेफिनेशन क्या है, वाक्य के जिस क्रिया से, वाक्य के जिस क्रिया से काम का हो जाना, होने की, काम का क्रिया से काम होने वाला या होगा, जैसे शब्दों का या क्रिया का रूप क्रिया का रूप का बोध हो उसे भविष्य काल कहते हैं। देखिएगा प्रीवियस में क्या देखा है, भूतकाल के अंतर्गत यानी काम का, वाक्य के अंतर्गत क्रिया का, जिस क्रिया के जिस रूप से क्या बताया गया, जो वाक्य में क्रिया के जिस रूप से काम का होना, वाक्य के जिस क्रिया से, माने यहाँ पर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, वाक्य में क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से काम होने वाला या होगा, जैसे शब्द, यानी ये क्रिया का रूप है, यानी क्रिया का परिवर्तन रूप है, परिवर्तन, change the tense, I mean is a verb. As per the changing of the verb we can decide the tense. As per that past tense, तो one to be, your past tense mean already work done by that person. Your present tense means now present working, that means the present work. And next future mean to be done. Just like here, these all are that the verb, the changing of that verb form, we can decide the tense as per changing of the verb form. इसी प्रकार हिंदी भविष्य यानी काल के अंतर्गत भी नहीं, वाक्य के अंतर्गत दिए गए क्रिया के
परिवर्तन से, क्रिया के परिवर्तन से काल का निर्धारण किया जाता है। ने जैसे काल का क्रिया, वाक्य के अंतर्गत क्रिया हो चुका है तो काम हो जाने का संभावना बोध करता है, तो उसको हम भूतकाल के रूप में, और काम का किया जाना, अभी काम किया जा रहा है, ऐसे संदर्भ में उसको वर्तमान काल में, यानी होने वाला या होगा, इस तरह से संबंधित जब क्रिया का परिवर्तन होगा तो इसको हम भविष्य काल के अंतर्गत निर्धारण करेंगे। जैसे उदाहरण के रूप में, उदाहरण क्या होगा, राम रोटी खाएगा, राम रोटी खाएगा मीन्स नॉट ईटिंग, टू बी ईट। ओके, यहां पर कल गोपाल गांव जाएगा। Tomorrow the Gopal was going to, tomorrow he gone to to be going to village, मीन यहाँ पर कल, यहाँ पे कल गोपाल गांव जाएगा या अपना गांव जाएगा, अपने गांव जाएगा। मैंने इस प्रकार से यहाँ पर दूसरा जो उदाहरण दिया गया वो जो होता है, हाँ, लड़का कल, भाभी क्या है, कल हैदराबाद से आने वाला है, लड़का है, यानी कि इसको यहाँ पे, हाँ, लड़का कल हैदराबाद से आने वाला है, मीन कल का रूप यहाँ पे जो होता है बीता कल नहीं है, अगला आने वाला कल है ना। यहाँ पे इस प्रकार से यह आने वाला है, मीन काम नहीं हुआ है, अब होगा, मैंने कल को काम होने की संभावना जो होती है तो इस वाले को हाँ भविष्य के अंतर्गत निर्धारण होते हैं। मैंने इससे एक ही सिंपली क्या होता है, काम का होने का या होगा या होने वाला, ऐसे संबंधी जो क्रिया का परिवर्तन रूप होता है वाक्य के अंतर्गत, उसको हम भविष्य काल के रूप में, भविष्य के रूप में निर्धारण करते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में, राम रोटी खाएगा, अभी खाया नहीं है और खाता है, खाया, ये जो होता है खाया वर्क पास्ट टेंस में हुआ है, अरे ये भूतकाल है, खाता है ये जो होता है वर्तमान काल है, ये वाला भविष्य काल है। जैसे बताएं, राम रोटी खा या, ये क्या होता है, भूतकाल है। इसी वाले के अंतर्गत राम रोटी खाता है, ये जो होता है कौन सा, ये वर्तमान काल है। और इसी तरह से राम रोटी खाएगा, ये जो होता है भविष्य काल है, भविष्य। तो इस प्रकार क्या होता है, काल के अंतर्गत खाया भूतकाल में, खाता है वर्तमान काल में, और खाएगा ये जो होता है ये भविष्य काल। इस प्रकार से एक एक काल के अंतर्गत होने वाला उदाहरण का एक क्रिया लिया गया है, खाने का काम, ये क्रिया के अनुसार इसका निर्धारण होता है। मेन बीता हुआ कार्य के संबंधी तो भूतकाल है, अने अभी जो काम हो रहा है तो वो जो होता है वर्तमान काल है, भविष्य में होने वाला है उसको भविष्य काल है। ने काम होगा या होने वाला है, वो ये भूतकाल,
है ना। और उसके बाद काम हो रहा है, ये जो होता है वर्तमान काल। काम होगा तो ये जो होता है भविष्य काल। तो इस प्रकार से ये चारों का निर्धारण का रूप इस प्रकार है ना। आशा है कि आप लोग इस तरह से अभ्यास का रूप देखेंगे, है ना। तो जिस मात्र से ये इस चार कालों के बारे में, तीन कालों के बारे में विश्लेषण, यहाँ पे आज के अंतर में अपने काल के परिभाषा और काल कितने प्रकार हैं और इसके काल के अंतर्गत उदाहरण के रूप में इसका विश्लेषण देखा गया। संक्षिप्त में इसको ऐसे 8 में से किसी भी 6 मात्र को करना है। ये 6 मात्र में किसी वाक्य शुद्धता, प्रत्यय, उपसर्ग, लिंग, वचन, काल के संबंधी प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें से किसी भी एक 6 वाक्य को शुद्ध करने मात्र से या अटेम्प्ट करने से आपको 6 अंक मिलेंगे। ओके, धन्यवाद।